طاہر القادری کسی اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقے، ایک گروپ، ایک کمیونٹی کی میراث نہیں، اس لیے کہ جس طرح خدا کا بنایا ہوا سورج سب کا ہے، خدا کا عطا کردہ چاند کی روشنی سب کی ہے، اگر چاند سب کا ہے، سورج سب کا ہے تو شیخ الاسلام بھی سب کا ہے۔ بیان حضرت بخاری کی مناسبت سے اس کو مکمل سنا، اور اس سے پہلے بھی آپ سے استفادہ ہوتا رہا ہے، آپ کی کتابیں، آپ کی تحریرات اور آپ کا بے باک خطاب سننے کا اتفاق رہا ہے۔ بالخصوص 15 دسمبر کی گفتگو میں جو سب سے زیادہ متاثر کن آپ کا جو جملہ تھا، جو کلمات تھے، وہ گھڑی تھی جب آپ نے بڑے درد کے ساتھ، بڑی فکر انگیزی کے ساتھ یہ کہا کہ میں اس وقت ملت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد دیکھنا چاہتا ہوں اور امت سے اختلافات کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ حضرت آپ کو اس پر بہت بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان قبول فرمائے۔ میں دیوبندی مکتب فکر سے ہوں، دارالعلوم کا فاضل ہوں۔ بے انتہا مبارکباد آپ کی اس قول پر، آپ کی اس فکر پر، آپ کی اس جذبات پر۔ اللہ آپ کے سایہ دراز کرے، عافیت کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے، دیر اور دور کے لیے اسی طرح آپ کو قبول فرمائے اور ہمارے سبب پر تادیر آپ قائم رہے۔ اب میں تجدید دین کرنے والے سارے عالم کے اندر پھیل کر کے کرنے والے جب کسی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا کام کیسا ہے، کام کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو میں وہ لقب نہیں دینا چاہتا سمجھے کہیں، لیکن کام خود بتلا دے گا کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ اب وہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ پاکستان کے بہت ہی مشہور عالم علامہ طاہر القادری کا ابھی قریب میں بیان سنا تو یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بریلویت اور دیوبندیت کے درمیان کی دیواروں کو توڑ کے رکھ دیں، ہم سب ایک دوسرے سے ملیں، نفرتیں ختم کریں۔ تمام علماء کو یہ بات کہنی چاہیے جو بات کہی علامہ طاہر القادری صاحب نے، میں 100% اس سے متفق ہوں۔ بہت اچھی بات کہی، بہت پیاری بات کہی۔ یہ ہے نبی کی بات، یہ ہے نبی کی بات، یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے نبی کی میراث۔ مبارک ہو علامہ طاہر القادری دامت برکاتہم کو، 100 بار مبارک ہو، 1000 بار ہو، لاکھ بار ہو، بے شمار بار ہو کہ نبوی نسبت کا انہوں نے اظہار پوری قوت کے ساتھ کیا کہ امت ایک امت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا اور اس کو توڑنا یہ بدترین جرم ہے۔ عالم اسلام میں وہ اپنی منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور وہ بریلویت اور دیوبندیت اور ایت اور پیت سے بلند ہے۔ وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑتے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، مدلل بات کرتے ہیں، جس کی دلیل یہ کتاب۔ میں نے اس کتاب کو سمجھ لیے، پورا پڑھ لیا، میں نے صبح ہی کتاب منگوائی تھی اور میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اگر بیان کرنے کا وقت ہوتا تو پوری رات گزرتی اور میں آپ کو وہ حقائق سناتا کہ آپ بھی چیخ پڑتے۔ حق بالکل واضح ہے، اس کے خلاف جو جرگہ، جو گینگ کوشش کر رہا ہے، یہ اس دور کا یزیدی گینگ ہے، اس کو شکست دینا ہمارا کام ہے اور اللہ ہمیں نصرت دے گا، مدد دے گا۔ قادری صاحب کو اللہ مبارک کرے، انہوں نے ایک دستاویزی کام کیا، یہ ایک ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح اس بات کا ادراک ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتب میں توحید کی تعلیم دی ہے۔ جیسے دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان میرا تعلق جامعۃ الرشید سے ہے اور منہاج القرآن کے درمیان کئی چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ ہم دونوں قدیم صالح اور جدید نافع کو جمع کرنے کے قائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو شیخ صاحب کی سرکردگی میں قائم ہیں اور چل رہے ہیں، اور یہ آج کی حسین محفل اس کا ایک مظہر ہے، جو نظم و ضبط ہے، جو ڈسپلن ہے، جو یہاں ایک نظام نظر آ رہا ہے، وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ رجال کار تیار ہو رہے ہیں۔ حضرت کی تصنیفات میں بھی ایسا تنوع ہے اور اتنی تحقیقی تصانیف ہیں کہ ان سے استفادہ کرنے کے لیے ہر طالب علم کو حریص ہونا چاہیے۔ الموسوعۃ القرآنیۃ الموضوعیہ بہترین تصنیف ہے اور الموسوعۃ القادریہ علوم حدیث پر بہترین تصنیف ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو حاصل کروں اور ان سے استفادہ کروں، تو ہمارے طلباء کو بڑھ چڑھ کر ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تمام مسالک سے وابستہ لوگوں کو یہاں حضرت ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت دی ہے۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ یہ ان کے والد محترم کا ہے۔ وہ ہمیشہ تمام مسالک سے اتحاد کے خواہاں تھے، ہمیشہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں ساتھ آیا تھا ہمارے حضرت امام الشہداء مولانا سمیع الحق شہید صاحب کو 20 سال پہلے حضرت ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے دعوت دی اپنے ادارے میں اور ادارے کا وزٹ کرایا، ان کا خطاب کرایا۔ تو الحمدللہ وہی سوچ الولد سر لابیہ کا مصداق بنے۔ 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے
डॉक्टर हसन महिउद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया दारुल हक्कानिया तशरीफ लाए थे। हजारों तलबा से हजरत ने 1 घंटा खिताब किया और तलबा इतने खुश हो गए। उसने आगाज किया, तमाम मदारिस में गए खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैं हजरत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इन बेहतर और अहसन इकदाम पर हजरत डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके साहिबजादगान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे लिए तो यही एजाज कम नहीं कि शेखुल इस्लाम के एक फंक्शन पर मुझे सामे की बजाय बोलने वाले का एजाज मिल रहा है। मैं अपनी इस खुशबख्ती पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद इंतजामिया का कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बोलने के लिए मुझ जैसे किसी तरह से भी कंपेरेबल नहीं आदमी को मौका दिया है। मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि जिस तरह का रुख चल रहा है गुफ्तगू का, मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा। मेरी बात जरा मुख्तलिफ है, इसलिए शायद किसी को बाद में एतराज भी हो, लेकिन चूंकि कायदे मोहतरम की शख्सियत किसी एक मकतबा फिक्र की मीरास नहीं है, इसलिए आलम इस्लाम के हर शख्स को दावा है कि कायद हमारा है। जंग से आने वाला ये नौजवान जिसे दुनिया सिर्फ ताहिर कहती है, कुछ अर्से के बाद लोग हल्का हल्का लेक्चरर को प्रोफेसर कहना शुरू हुए। अगर आज वो शेखुल इस्लाम बन गया है, अगर आज वो दुनिया के सारे लोगों की जान बन गया है, तो उसके पीछे भी ये है कि जो खुदा का हो जाएगा, खुदा की सारी खुदाई उसके। अल्लाह करीम ने, हम खुशबख्त लोग हैं कि आज के दौर में हमें भी एक ऐसे इंसान से मुतारफ करा दिया जो खुदा के हो जाते हैं। वो कभी दुनिया से जाया नहीं करते, वो दुनिया में अमर हो जाया करते हैं। इसलिए दलील ये है कि जिस तरह खुदा को हमेशा रहना है, इसलिए जो खुदा की जात में जम हो जाएंगे वो भी हमेशा ही पा जाते हैं। कि ताहिरुल कादरी किसी इस्लामी फिरकों में से एक फिरके, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी की मीरास नहीं। इसलिए कि जिस तरह खुदा का बनाया हुआ सूरज सबका है, खुदा का अता करना चांद की रोशनी सबकी है। अगर चांद सबका है, सूरज सबका है, तो शेखुल इस्लाम भी सबका है। 30 सालों में इंशाअल्लाह, अब मैं हज के मौके पर मुझे बड़े लोग अल्लाह के फजल से मिले जो बड़े से बड़े आला से आला लोग हैं। सब अंदा वालों का मुतफिका ऐलान ये है कि अगली 3 दहाइयों में अल्लाह का दीन पूरी कायनात में गालिब होने वाला है, मिनहाज होने वाली है। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे तो अल्लाह के दीन का ये अरूज देखेंगे, मिनहाज देखेंगे जो आज से 30 साल पहले कुरान का मिनहाज छोटे से इदारे में शुरू हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह डॉक्टर साहब की जिंदगी में, सेहत में, ईमान में, फैजान में बरकत दे। हम उनके साथ वो दिन भी मनाए कि जब मेरे अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में गालिब होगा, और वो दिन आने वाला है, वो आकर रहेगा। लेकिन मैं एक दुआ करने लगा हूँ कि या अल्लाह, डॉक्टर साहब का जो काम करने, वो कभी कनाडा तन्हाई में जाते हैं, कभी इंग्लैंड जाते हैं, वो काम कभी मुकम्मल ना हो। ये दुआ है मेरी। डॉक्टर साहब का काम मुकम्मल ना हो, इसलिए कि जिस दिन हज्जातुल विदा के मौके पर आयत उतरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सारे सहाबा तो खुश हो गए। एक जीरक, एक नजरबीन सिद्दीक अकबर थे जो छम छम रो रहे थे। सहाबा ने पूछा कि आका, आप आका के सबसे बड़े रफीक क्यों रोते हैं? फरमाया, सुनते नहीं इस आयत में क्या लिखा है कि जब किसी काम करने वाले का काम मुकम्मल हुआ जाता है तो फिर उसे बुला लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर साहब को हमेशा की जिंदगी सेहत ईमान में तवालत नसीब फरमाए। इसलिए इनडायरेक्टली ये बात कह रहा हूँ कि काम मुकम्मल हो गया तो बुला लिए जाएंगे, ना मुकम्मल रहा तो हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी की खिदमत को सलाम। उन्होंने ऐसी तरबियत कर दी जैसे मेरे नबी ने तरबियत की थी, हज़रत साहब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की, कि मजाले को ग़ीबत करे। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जमात का कोई बंदा ग़ीबत नहीं करता। जैसे मेरे नबी ने तरबियत की थी, डॉक्टर कादरी साहब ने भी ऐसी तरबियत की है, कोई इनका बंदा गाली नहीं देता। जैसे मेरे नबी ने तरबियत फरमाई, ऐसे इन्होंने डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने वो कर दी, किसी से नफरत नहीं करते। तो आइए हज़रत डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की नहज पर हम भी चलें कि तामीरी सोच मुंतकिल कर रहा है, तरबियत कर रहा है, इस्लाह कर रहा है, और बंदा अल्लाह के रसूल से जोड़ने वाला है। हम तोड़ने का जरिए बने, ग़ीबत तोड़ने का जरिए है, गाली तोड़ने का जरिए है, नफरत तोड़ने का जरिए है। हम तोड़ने का जरिए अपना रहे हैं और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब खुद भी और उनकी जमात जोड़ने का अपना रहे हैं। तो आइए मेरे विदो, मेरे नबी की सुन्नत असील मन कता वाफु मन दलमत नासिन लमन असा, ये तोड़े उससे जोड़ो, जो बुराई करे से अच्छाई करो, जो जुल्म करे से माफ करो। ये ताहिर कादरी साहब अपनी जमात को ये तरबियत दे रहे हैं, इस्लाह करें। ये तामीरी सोचते उनका मुकाबला करना है तो बावजूद रहे, उनका मुकाबला करना है तो ऐसी किताबें लिखे उम्मत की फैली करी, उनका मुकाबला करना है तो ऐसे लिल्लाह बिल्लाह वक्त कर दे अपने आप को, उनका मुकाबला करना है तो साइकिल किताबें लिखे, उनका मुकाबला करना है तो ऐसी जमात बना दे, उनका मुकाबला करना है तो दुश्मन के लिए भी आंखें बल्कि भी छाते हैं, बड़ा दर्द लेकर उनको गालियां देने वालों के लिए वो दुआ देते हैं
तो आइए हम भी वही सिफात अपने। ये सिफात मेरे नबी की थी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, तरबियत याफ्ता मुआशरा पूरी दुनिया में छा गया। और इसी तरह डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की तरबियत करके पूरी उम्मत परेशान कर रहे हैं। सलाम उनकी अजमत को। आइए डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की लाख इख्तिलाफ करें, आप उनकी अजमत को सलाम करें और उन्हीं की तरह तरबियत करें, उन्हीं जैसा किरदार अदा करें। अल्लाह हम सबको ऐसी कबूलियत अता। हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने जब ये आवाज बुलंद की तो सब लोगों ने उसी तरह की बातें की जब पैगंबर ने नबूवत का ऐलान किया। तहरीक मिनहाजुल कुरान जब आई तो तरह तरह की बातें हुई। आज वो सब मानने पर मजबूर हुए कि जो शेखुल इस्लाम की तहरीक है वो हकीकी माना में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक। तो इस सदी के शेखुल इस्लाम हम समझते हैं कि वो मुजद्दिद भी हैं और उन्होंने वहदत का जो पैगाम दिया और बहुत बातें सुनी उन्होंने, बहुत तकलीफें सही उन्होंने, लेकिन आज खुशबख्ती का दिन है कि वो कामयाब हो गए। तो वो तो आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। मेरी उनकी मोहब्बत है, ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है और एक एजाज़ की बात है। फिर वो एक पॉजिटिव काम जो कर रहे हैं, मुझे वहाँ लाहौर भी मिलने का मौका रहा। आज मैंने उनकी लाइब्रेरी देखी। जाहिद भाई ने बताया, खुद डॉक्टर साहब ने बताया कि वो 16 घंटे किताबों में ही बैठे रहते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोग और भी नसीब फरमाए। ये अल्लाह का एहसान है, किसी को इंतखाब कर लेता है और वो देखने में एक शख्स होता है और उससे काम हज़ारों का लिया जाता है। तो शेखुल इस्लाम भी ऐसी शख्सियत हैं, देखने में एक हैं लेकिन वो हज़ारों के मजमूए पर मुझे भारी नज़र आते हैं। मुझे डॉक्टर साहब से बड़ी मोहब्बत है, उनके इल्म की कदर भी है। एक आदमी होकर 90 मुल्कों में दीनी दर्सगाहें कायम करना और उसका मेयार और उसकी तरबियत, मिनहाजुल कुरान, मैं दुनिया में जिस मुल्क में गया हूँ वहाँ मुझे मिनहाज के इदारे मिले, मैंने सबका विज़िट किया, एक एक जगह गया। मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को कबूल किया। इधर किताबों के ढेर लगा दिए लिख लिख के, इब्न जौज़ी को लगता है काट गए हैं, और इधर इदारे इस तरह चलाए। मैं उनकी इस मेहनत को सलाम पेश करता हूँ और मैं आप सब के लिए भी दुआगो हूँ कि ये एक बहुत बड़ी काविश हुई है और उन्होंने माशाल्लाह दुनियावी दीनी उलूम जमा किए कि जो बच्चा यहाँ से निकले वो इल्म दीन भी जानता हो और अपने ज़रिया माश के लिए बाइज़्ज़त तौर पर ज़िंदगी गुजार सकता हो। ये इनकी एक तजदीद है, तजदीदी कारनामा है और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। ये मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है तारीफ़ करने के लिए। मैं आप सब हजरात को दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह इसे और आगे बढ़ाए, इसके फ़यूज़ को। फिर मुझे याद पड़ता है कि वहाँ मैं जब गया था तो दरूद खाना दिखाया गया था और उस वक्त जो चल रहा था अदद, वो मुझे वहीं के जो दोस्त थे ज़िम्मेदार बता रहे थे कि 1 अरब मरतबा दरूद पाक पढ़ा जा चुका है। तो वो शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसके इदारे में 1 अरब, ये तो आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, अब वो कहाँ पहुँचा हुआ होगा। मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ दिल की गहराइयों से। अहले इल्म में इख्तिलाफ राय होता है, डॉक्टर साहब को मुझसे होगा, मुझे उनसे होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनकी अज़मत का इनकार करें, उनकी मेहनत का। मैं गया था कनाडा, टोरंटो, उनके घर पर भी, तो उन्होंने नीचे अपनी लाइब्रेरी दिखाई तो और मुझे फरमाया कि मैं सारी रात लिखता हूँ और दिन में सोता हूँ और किसी को नहीं बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। और ऐसे खूबसूरत अनावीन पर उनका कलम चला है कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं डॉक्टर साहब से भी दुआ का तलबगार हूँ और आप सारे इदारे, उनकी शाखें, सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसे और कबूलियत बख्शे।